BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. پاکستانی پارلیمنٹ جمہوریت بچانے کے لیے متحد، لیکن دھرنوں کے رہنماؤں کی نظر جمہوریت پر ہے یا فوج پر؟ اتنا واضح سوال آپ کو. لک انٹو مائی آئیز. کوئی شک ہے آپ کو؟ جمہوریت. دولت اسلامیہ کی گونج اب انڈونیشیا میں بھی سنائی دے رہی ہے. حکام پریشان کہ اس مسئلے سے کیسے نمٹا جائے. اور افغانستان کے مستقبل کی ایک جھلک قندھار ایئرپورٹ، جو اب 24 گھنٹے مصروف رہتا ہے. اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے خصوصی مشترکہ اجلاس میں آج سیاسی رہنماؤں نے جمہوریت کے تحفظ کے لیے حکومت کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کور کمانڈرز کے حالیہ اعلامیے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. آخر کیوں؟ کیا اس سے موجودہ جمہوری نظام کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے یا پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کے خدشات میں کوئی دم ہے؟ ارم عباسی کی رپورٹ. نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ ملک کے مقدس ادارے کے احاطے میں احتجاجی تو اندر اراکین. بیچ بچاؤ کے لیے درمیان میں کھڑی آخری رکاوٹ فوج ہے. سیاسی بحران کے باعث جہاں پارلیمان کا تحفظ فوج کر رہی ہے، وہیں ماضی میں غیر آئینی طریقے سے اقتدار پر برجمان رہنے والے اس ادارے کے عزائم پر اراکین پارلیمان کو تشویش بھی ہے. ہر شہری فوج کو اپنا فوج کہتی ہے، لیکن کور کمانڈرز کے جو اعلامیہ ہے، ایک پہلو اس کا یہ کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، لیکن آج ایک عنصر پاکستان کی پارلیمنٹ پہ حملہ کر رہا ہے. اس ساری صورتحال کے بارے میں پھر ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نے طاقت استعمال نہیں کرنی. کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ اس پارلیمنٹ نے جتنا جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے، کسی آمر نے نہیں پہنچایا جتنا اس پارلیمنٹ نے نقصان پہنچایا. بعض ماہرین فوج کے کردار کو متنازع کرنے کا الزام دھرنوں کے سربراہان پر ڈالتے ہیں. پی ٹی آئی اور پاکستان عوامی تحریک نے ضرور اس چیز کو استعمال کیا ہے جہاں پر انہوں نے فوج کے ساتھ اپنے تعلقات کو کسی نہ کسی طریقے سے اشارے دیے یا انڈیکیٹ کیا. اس ماحول کے اندر جب وہ عزت کا مقام کوئی پاکستان افواج کو دیتا ہے تو لگتا ہے تو یہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا یہ واقعی ان کی آشیرواد کے ساتھ آئے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے اس وقت پشیمانی کا باعث ہیں. مگر بیشتر ماہرین اس سے متفق نہیں. ان کے خیال میں فوج کی جانب سے بیان پر بیان آنا اور اس میں حکومت کو تشدد سے روکنا مگر مظاہرین کے غیر آئینی مطالبات پر بات کرنے سے گریز کرنا ایسی باتیں ہیں جو کہ فوج کے کردار پر سوالیہ نشان اٹھا رہی ہیں. تو کیا بظاہر ملک کا مضبوط ادارہ یعنی پاکستانی فوج کسی حد تک دوہری پالیسی اپنا رہی ہے؟ فوج کے کم از کم کسی ایک سیکشن، اگر ساری فوج نہیں اور کمانڈر ان چیف نہیں تو کوئی ایسی لابی ضرور ہے فوج میں جو یہ چاہتی ہے کہ اس حکومت کو ختم کر کے اور کوئی نیا سیٹ اپ لایا جائے. جمہوریت کے استحکام کے لیے گزشتہ 6 برسوں میں حاصل کیے گئے اہداف کے باوجود آج پھر یہ بحث گرم ہے کہ کیا حالات ایک مرتبہ پھر مارشل لاء کی جانب دھکیلے جا رہے ہیں؟ ارم عباسی، BBC نیوز، اسلام آباد. کیا حالات واقعی ایک بار پھر مارشل لاء کی طرف جا رہے ہیں؟ اس پر ہمیں بہت بڑی تعداد میں آپ کی آرا بھی موصول ہو رہی ہیں. فرید قریشی لندن سے لکھتے ہیں، سیاستدانوں کی نااہلی کا مطلب جمہوریت کی ناکامی نہیں اور نہ ہی اس کا حل آمریت ہے. آپ کی آرا پر تفصیل سے نظر ذرا دیر میں ڈالیں گے، لیکن پہلے اسلام آباد میں ہماری ساتھی نوشین عباس نے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سے بات کی اور پہلا سوال یہ پوچھا کہ جاوید ہاشمی کے اس الزام پر ان کا کیا رد عمل ہے کہ پی ٹی آئی کو فوج کی حمایت حاصل ہے. انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں الزامات لگائے اور رات کو ایکسپریس ٹیلی ویژن پہ انہوں نے وضاحت کر دی کہ عمران خان کا کسی ادارے سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور انہوں نے مجھے بارہا یقین دلایا کہ میں کسی غیر آئینی اقدام کو سپورٹ نہیں کروں گا. اب میں کس کو تسلیم کروں؟ پہلے انٹرویو کو یا دوسرے کو؟ فوج کا آپ کے پارٹی کے ساتھ ہونا اتنا شک کا ذریعہ بن گیا ہے کہ اگر عمران خان گھر جائیں یا ورزش کے لیے نکلیں تو لوگ کہتے ہیں فوج سے بات کر رہے ہیں. کیوں؟ دانستہ طور پہ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے سائے سے گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں. اب نواز شریف صاحب کا ایک بیک گراؤنڈ ہے
क्योंकि वो फ़ौज की बेसाखियों से आए थे, वो ज़ियाउल हक के रास्ते से ऊपर आए थे, तो उनको हर सियासी मूवमेंट जो लगता है कि उसकी पुष्ट पनाही हो रही है, फ़ौज कर रही है। इमरान खान ने अगर फ़ौज का सहारा लेना होता और बैसाखियाँ लेनी होती तो 18 साल धक्के ना खा रहे होते। जब इल्ज़ामात लगते हैं चाहे वो बेबुनियाद हो, लेकिन दाग लग जाता है, आपकी और दूसरी पार्टियों में फ़र्क क्या रहा? देखिए, कुछ दाग होते हैं जो लगाए जाते हैं लेकिन तारीख़ उनको धो देती है, और कुछ दाग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं धुलते। इंशाअल्लाह हमारे दामन पर आप ऐसा दाग नहीं देखेंगे जो धो ना सके। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? रेजोल्यूशन तो आने दीजिए, मुताला करने दीजिए, पढ़ने दीजिए, जमहूरी होंगे, आइन के होंगे, आवाम की बेहतरी और पाकिस्तान के मफाद में होंगे, ज़रूर गौर करेंगे, ज़रूर कबूल करेंगे। फ़ौज का कहना है कि आपकी पार्टी के इस मूवमेंट के पीछे वो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि बयान आपके हक़ में देती है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हम फ़ौज से दूर रहना चाहते हैं लेकिन उसकी अहमियत को समझते हैं। वो एक कौमी इदारा है, वो आज पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहा है। आज वज़ीरिस्तान में जान कौन दे रहा है? सियासतदान नहीं दे रहा, फ़ौजी जवान दे रहा है। मुझे फ़ख्र है अपनी फ़ौज पर, ये मेरा कौम का इदारा है, ये पाकिस्तान के फ़ौज, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं हम, लेकिन उनका अपना रोल है और वो आइन का रोल है। सियासत में आना उनका काम नहीं है, लेकिन मुल्क के मामलात से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाएं, नेशनल सिक्योरिटी उनकी ज़िम्मेदारी है और इंटरनल सिक्योरिटी बेपनाह इम्पोर्टेंट है। अगर फ़ौज हुकूमत को ख़त्म करना चाहे तो आप किसके साथ खड़े होंगे, फ़ौज या जमहूरियत? जमहूरियत। नो डाउट अबाउट इट। इतना वाज़ेह सवाल आपको, लुक इनटू माय आईज़, कोई शक है आपको? जमहूरियत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जिनसे हमारे साथी नौशीन अब्बास ने बात की। आइए अब देखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया सफ़ात पर इस बारे में आप क्या कह रहे हैं। फ़िज़ा बतूल इस्लामाबाद से लिखती हैं, सियासी जमातों का ये इत्तेहाद पाकिस्तान में जमहूरियत को बचाने की गारंटी तो नहीं है, लेकिन इस इत्तेहाद से जमहूरियत दुश्मन क़ुव्वतों को झटका ज़रूर लगा है। सैयद मुश्तबा अली काज़मी लिखते हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत पर हमेशा के लिए पाबंदी हो, जमहूरियत पाकिस्तान की सेहत के लिए अच्छी नहीं। और ज़ैद डार लिखते हैं, अगर इस बहरान को जल्द अज जल्द हल न किया गया तो पाकिस्तान को आमरीत से कोई नहीं बचा सकता। और अब एक नज़र दीगर अहम मौज़ूआत पर। शाम और इराक़ में शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के तेज़ी से फैलने के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया के हुक्काम वहाँ इस तंजीम के बढ़ते हुए असर रसूख पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इंडोनेशिया के मुसलमानों में दौलत इस्लामिया की बढ़ती हुई हिमायत पर नामनिगार सुरेल इस्तारी की रिपोर्ट। इंडोनेशिया में दौलत इस्लामिया को प्रमोट करने वाली इस ऑनलाइन वीडियो के सामने आने के बाद खदशात बढ़े हैं। हुकाम का कहना है कि इस गैर तस्दीक शुदा फुटेज में नजर आने वाला एक शिद्दत पसंद इंडोनेशिया का बाशिंदा है। उन्हें यकीन है कि कम से कम 30 इंडोनेशियाई बाशिंदे इराक़ और शाम में दौलत इस्लामिया के शाना बशाना लड़ रहे हैं। यहाँ की हुकूमत ने दौलत इस्लामिया पर पाबंदी लगा दी है और इंटरनेट पर इस वीडियो समेत इस शिद्दत पसंद तंजीम के प्रोपेगेंडा मटीरियल को ब्लॉक भी कर दिया है, लेकिन शायद ये इक़दामात नाकाफ़ी हैं। मालंग कस्बे में मकामी लोगों ने दौलत इस्लामिया के हिमायतियों को शहर से दूर एक मस्जिद तक महदूद कर दिया है। इस मस्जिद के अंदर ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि वो दौलत इस्लामिया के हामी हैं और इस तंजीम को यहाँ फैला रहे हैं। वो पुलिस को पता चलने के खौफ से हमें अंदर आने नहीं दे रहे। मैं दौलत इस्लामिया के हिमायतियों की अंदर से आने वाली आवाज़ें सुन सकती हूँ। ये तंजीम के साथ अपनी वाबस्तगी का अहद कर रहे हैं। हम तंजीम की हिमायत कर रहे हैं, जहाद तो नहीं कर रहे। इंडोनेशिया के इत्तेदाल पसंद मुसलमान तो दौलत इस्लामिया के नज़रियात को मुस्तरद करते हैं, लेकिन यहाँ के हुकाम 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों की आबादी पर मुश्तमिल इस मुल्क में दौलत इस्लामिया के नज़रियात फैलने से परेशान हैं।
इंडोनेशिया से इसराइल इस्तारी की रिपोर्ट। और अब दीगर आलमी खबरों पर एक मुख्तसर नज़र डालते हैं। अमेरिका ने सोमालिया में मौजूद इंतहा पसंद तंजीम अल-शबाब के खिलाफ फौजी ऑपरेशन किया है। पेंटागन का कहना है कि वो ऑपरेशन के बारे में मजीद तफसीलात इसके नताइज का जायजा लेने के बाद जारी करेगा। इत्तलात हैं कि इस ऑपरेशन में अल-शबाब के लीडर अहमद अबदी गोडेन को टारगेट किया गया है। इंडिया की शुमाली रियासत हिमाचल प्रदेश की एक अदालत ने जानवरों को ज़बाह करने पर पाबंदी आयद कर दी है। फैसले में ज़बाह करने के तरीके को वहशियाना और जानवरों के लिए तकलीफदेह करार दिया गया। सऊदी हुक्काम का कहना है कि उन्होंने 88 अफराद को दहशतगर्दी के मंसूबे बनाने के शुबे में गिरफ्तार किया है। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुश्तबा अफराद की कई माह से निगरानी की जा रही थी। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, अफगानिस्तान के शहर कंदहार का एयरपोर्ट जंग के बावजूद 24 घंटे कैसे मसरूफ रहता है। और बाल सिर्फ गुस्से ही में नहीं नोचे जाते, ये एक बीमारी भी है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज की। 2 रोज़ बाद यहाँ बरतानिया में अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल पर नेटो एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद कर रहा है। मग़रिबी ममालिक अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल किस तरह का देखना चाहते हैं, इसकी एक झलक कंदहार के एयरपोर्ट में नज़र आती है, जहाँ हाल ही में मुत्तहिदा अरब इमारात की पहली फ़ज़ाई कंपनी फ्लाई दुबई ने अपनी परवाज़ों का आगाज़ किया। अफ़गान हुक्काम उम्मीद कर रहे हैं कि इस एयरपोर्ट से मज़ीद एयरलाइंस भी परवाज़ों का सिलसिला शुरू करेंगी। रिफ़त उरगज़ई की रिपोर्ट। कंदहार एयरपोर्ट 2 रनवेज और 2 टैक्सीवेज के साथ अफगानिस्तान का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट समझा जाता है। ताहम यहाँ बड़े अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे की मौजूदगी के बायस ये एयरपोर्ट अक्सर औकात मसरूफ़ रहता है। हुकाम का कहना है कि कंदहार एयरपोर्ट को जदीद खतूत से आरास्ता करने के लिए काम का आगाज़ कर दिया गया है। हवाई डगर बंदी तकरीबन गुज़श्ता 3 सालों के दौरान एयरपोर्ट की तामीर पर तकरीबन 10 करोड़ यूरो खर्च किए गए हैं। इस बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट में 20 से 25 मंसूबे मुकम्मल किए गए, जिसमें सबसे बड़ा मंसूबा 2 रनवेज और 1 टैक्सी वे की तामीर और पार्किंग की कुशादगी शामिल है। एक नया मंसूबा एयरपोर्ट के बैरूनी टर्मिनल की तामीर है, जो आइंदा 5 माह के दौरान 4 मिलियन यूरो की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे का मकसद एयरपोर्ट में बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलियात फराहम करना है। सरकारी एहलकारों का कहना है कि बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलियात फराहम करने के लिए इसलिए कोशिशें की जा रही हैं ताकि बैनुल-अक़वामी एयरलाइन फ्लाई दुबई के लिए राह हमवार किया जा सके। फ्लाई दुबई ने कंदहार एयरपोर्ट से अपनी परवाज़ों का आगाज़ कर दिया है। इस हवाई कंपनी के हफ्ते में 2 परवाज़ें हैं जो इसी तरह जारी रहेंगी। अहम बात यह है कि हम किस तरह ताजरों और सनतकारों को सफरी और दीगर सहूलियात फराहम करें ताकि उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न हो। फ्लाई दुबई के अलावा कंदहार एयरपोर्ट से काम एयर, स्काई एयरलाइंस, अफगान जेट, आरियाना, सिल्कवेज, ATI और दीगर एयरलाइनों की परवाज़ें भी जारी हैं। हुकाम ने एयरपोर्ट की हदूद में हाल ही में कार्गो स्कैनर्स की तनसीब और ताज़ा पलों को महफूज बनाने के लिए स्टोरेज की सहूलियात फराहम करने को बैनुल-अक़वामी मेयार के बराबर करार दिया है। कंदहार एयरपोर्ट अफगानिस्तान का वाहिद फ़िज़ाई अड्डा है जहां 40 के करीब तैयारों को खड़ा होने के लिए गुंजाइश मौजूद है, जबकि एयरपोर्ट एक वसी रकबे पर कायम किया गया है जहां मुस्तकबिल में भी तोसी की जा सकती है। रिफ़तुल्लाह उरगज़ई, BBC न्यूज़। इस वक्त हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आप किन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। हमारी वेबसाइट पर आज़ादी और इनकलाब मार्च की लाइव अपडेट्स गुज़श्ता 3 हफ्तों से मुसलसल टॉप स्पॉट पर हैं। इसके अलावा रेड जोन में मुजाहिरीन की मसरूफियात की पिक्चर गैलरी में भी आप बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। और अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो अब हमारे नए YouTube चैनल youtube.com/BBC उर्दू पर भी देख सकते हैं। यहाँ आप हमारे पुराने प्रोग्राम और इनमें शामिल रिपोर्ट्स भी देख सकेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
पाकिस्तान में तो कुछ लोग बज़ाहिर जमहूरियत के बाल नोचने पर तुले ही हैं, लेकिन एक खातून के बाल नोचने की बीमारी ट्राइकोटिलोमेनिया पर बनाई एक वीडियो ने यूट्यूब पर धूम मचा दी है। इंग्लैंड से 21 साला रेबेका ब्राउन ने 6 साल से इस बीमारी की वजह से पेश आने वाली मुश्किलात और तकलीफ को रिकॉर्ड करने के लिए रोज़ाना अपनी एक तस्वीर खींची। उनकी इस फिल्म को अब तक 5 करोड़ बार देखा जा चुका है। मेरा नाम रेबेका ब्राउन है और उम्र 21 बरस। यूट्यूब की ब्लॉगर हूँ। मैं ट्रिकोटिलोमेनिया नामी बीमारी का शिकार हूँ। ये सर के बाल नोचने की इंतहाई उलझी हुई बीमारी है। मैं एक एक करके अपने बाल उतारती हूँ और कई बार मुकम्मल गंजी हो चुकी हूँ। ये वीडियो 5 बरस पुरानी है। मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि ये मेरी अकेली की बीमारी है या लाखों और लोग भी इसमें मुब्तला हैं। I was very alone. I've tried everything and nothing seems to stop it. It just keeps coming back. When I was about 12, जब मैं 12-13 बरस की थी, मेरी खुद एतमादी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। किसी से बात नहीं कर सकती थी। मैं बिल्कुल तन्हा रह गई थी। YouTube just appeared in my life. Hello. फिर YouTube मेरी ज़िंदगी में आया और मेरी आवाज़ बन गया। अगर YouTube ना होता तो मुझ में एतमाद भी ना होता। मैं अब भी कैमरे से मुखातिब होना ज़्यादा आसान समझती हूँ। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं होता। मैं इसके सामने बैठकर आधे घंटे तक बात कर सकती हूँ। देखें, ये सब खतूत मेरे नाम लिखे गए। किसी ने 10 सफ़हात में मुझसे अपने डिप्रेशन की बात लिखी। इसे पढ़ना बहुत मुश्किल था। मुझे जवाब देने में 1 महीना लग गया। ये सब बहुत मुश्किल है। इनमें से कई लोग किसी को अपना दुख नहीं बता सकते, अपने वालिदैन को, ना अपने दोस्तों को, लेकिन ये लोग मुझे अपने दिल की बात बता सकते हैं। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सहरबीन का अहम मौजू था सियासी रहनुमाओं का जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान और कोर कमांडर्स के हालिया एलामिये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि बुध को आखिरी बार तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करेंगे और बताएंगे कि कौन जमहूरियत के साथ है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सहरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलिया नाज़की को इजाज़त दीजिए।